Good morning, students. So we will be starting group 18 elements discussion, and this topic belongs to P block elements, and this is the last topic of this chapter. And after that we will be solving question answers to practice the questions based on reasoning, what happens when, fill in the blanks, and facts based on the properties of the compounds and elements from group 15 to group 18. Okay, so through question answers we will be studying that. So the last topic we will be dealing it in this way. See, group 18 elements are also called as noble elements or noble gases. They consist of helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and oganesson, Og. Alright. Now, mostly neon and argon, they are found in the neon, argon, and helium also. They are found in the dry air, and their composition is nearly 1% in atmosphere. This is one way of occurrence. Second way of occurrence is that they are found in the minerals of radioactive origin. Like, if you will see radon, radon comes out from radium. Radium has atomic number 88 and mass number 226. Now this becomes radon, Rn, and one helium molecule comes out, 24. Now the sum of its atomic number and mass number, and its atomic number and mass number should be same. So if out of 88 2 has come out, so this has to be 86, and if out of 226 4 has come out, then this has to be 224. In this way we can remember. This is radon. So it is formed due to radioactive decay. Oganesson is recently found by bombarding calcium ions with lots of extra neutrons in it on californium. Californium's atomic number is 98 and mass number is 249. It is bombarded with calcium ion, but the isotope is a very different kind of isotope, 20, and mass number is 48. That means it has extra 8 neutrons, so it is a heavy nuclei. So when it bombards on it, strikes on it, then it breaks into oganesson, Og, and neutron comes out. How many neutrons comes out? 3 neutron comes out. By convention, it is atomic number is taken as 1 and mass number is taken as 1. Atomic number is taken as 0 and mass number is taken as 1. So what difference will it cause? This has to be added to this and then minus 1. So it will be 294 and its atomic number will be 118. This was all about the occurrence part. But the question is, are they really noble? So far we were knowing that their octet is completely fulfilled. Octet of, say, duet of helium is fulfilled. Octet of neon 2, 8 is fulfilled. Octet of argon 18, 2, 8 is fulfilled. So they are stable. But
As you go down the group, electropositivity increases. As you go down the group, electropositivity increases. As a result, in case of xenon, the outermost electron which is there, the 8 outermost electrons which are there in xenon, they have very low or comparatively low ionization energy due to big size. Since its size is big, so its electron can be easily taken out, and hence it shows a valency of +6 very easily. Like you will find that xenon can react with oxygen to form XeO3, and xenon can also react with fluorine to form XeF6. So the maximum valency is shown to be +6. It is possible in case of xenon because xenon is a bigger element. So as its atomic size increases, ability of its 8 electrons in the outermost shell to be pulled out by highly electronegative element. So oxygen and fluorine are highly electronegative element. Fluorine is highly electronegative. Oxygen is highly electronegative. So they can pull out electron from xenon very easily. And hence, compared to fluorine and oxygen, xenon is bound to give out its electron and hence forms various oxides and fluorides and oxofluorides of xenon. Now let us see a few compounds of xenon. We will start with the fluorides of xenon and then with oxofluorides of xenon and then the product of hydrolysis of xenon fluoride. So xenon fluoride can be of 3 types. So there will be a 1, 2, 3, 4 rule I will tell you. This rule I have made to make you remember. XeF2. How to prepare? So childish. Take Xe and F2. Xe should be in excess and its pressure should be how much? There is a pressure condition and temperature condition. 673 Kelvin and pressure should be 1 bar. Next is XeF4. How to prepare? We take Xe plus 2F2. In what ratio? We have to take this in 1:5 ratio. Okay. Logically it seems to be 4, but then you have to take little bit of excess of fluorine. Here xenon we have taken excess, and when we are taking xenon as excess, then fluorine will be not in excess, so it will form XeF2. But here fluorine we have to take excess, so that it forms XeF4. And pressure will be 7 bar and temperature will be 873 Kelvin. Next is XeF6. How to prepare? Very easy. Xe plus 3F2 and it's, since excess of fluorine is here, so we will give this in 1:20 ratio. So it was 6, it was 8, 7373 is common, 7373 is common. So guess what will be there here? It seems to be that it is 6, it is 10, 8, so it should be 10. It is not 10, it is 10 divided by 2. So 573. Just to remember, huh? But the pressure has to be very high for fluorine to be added here. So pressure comes out to be around 60 to 70 bar. So if you write in practice, you will be able to remember. So these are the fluorides of xenon. Okay, these are the fluorides of
xenon. Now one important question comes about the hydrolysis of fluorides of xenon. Okay, that what are the products of hydrolysis of fluorides of xenon. So whenever xenon fluoride undergoes hydrolysis, at that time what is the possibility? The possibility is that xenon element will be coming out, HF will be coming out, XeO3 can come out, or O2 can come out. Okay, so let us take one example. By the way, XeF6 can also be prepared by taking XeF4 and O2F2. So this will form XeF6 plus O2. You can add this to your memory. Now say XeF2 is there, and if you treat it with H2O and you have not learnt it by heart, आपने एग्जाम में इसको याद नहीं किया है, तो आप कैसे लिखेंगे क्या बनने वाला है ये? सो क्या क्या निकलेगा? अगर xenon फ्लोराइड को, किसी भी तरह के xenon फ्लोराइड को हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से, तो क्या निकलेगा? HF निकलेगा, और क्या निकलेगा? O2 निकलेगा. तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ xenon बचेगा. तो क्या क्या निकलेगा? O2 निकलेगा, H और F मिलके HF निकलेगा, और क्या बचेगा? xenon बच जाएगा. याद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया. तो यहाँ पे 4H है तो ये 4HF होगा. ये 4 हो गया, फ्लोरीन 4 हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने 2 दिया तो xenon भी 2 हो जाएगा. ठीक है, एक बार और करें. You can do it once yourself to learn it by heart. Okay. Another option is XeF6. Now I will take XeF6 and I will give only one H2O. मुझे 1H2 ही देना है, तो 1H2 देंगे तो क्या होगा? इसमें से 2 फ्लोरीन निकलेगा. 2 फ्लोरीन निकलेगा तो क्या बनेगा? 2HF. ठीक है, और क्या बचा इसके अंदर? 4 फ्लोरीन बचा और 1 ऑक्सीजन बचा. तो क्या लिखेंगे हम? XeOF4. याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है. व्हाट वी हैव डन, XeF6 वी हैव टेकन, और हमने सिर्फ H2O दिया, तो 2H और 2F मिलके 2HF निकल गया. जो बाकी बचा साथ में लिख दिया उसको XeOF4. ठीक है. स्ट्रक्चर वी विल सी इन ए लिटिल वाइल. इज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड विजिबल? यस, इट इज विजिबल. नेक्स्ट, अब दो वाटर मॉलिक्यूल और बढ़ा देते हैं. Okay, let me increase 2 more water molecule. XeF6 plus 2H2O. कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है. यहाँ पे कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है. तो 4 हाइड्रोजन है तो 4HF निकाल देते हैं पहले. 4HF निकाल दिया, तो क्या बचा? 2 ऑक्सीजन बचा और 2 फ्लोरीन बचा. 4 फ्लोरीन निकल गया, 2 फ्लोरीन बचा, तो दिस विल बिकम XeO2F2. इजी. प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon फ्लोराइड. प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon फ्लोराइड पूछते हैं. प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon फ्लोराइड. तो हमने क्या रूल लगाया यहाँ पे? 1 2. अब तीसरा क्या करेंगे? 3. 1 2 3 रूल. XeF6 याद करने का तरीका है ये. 3H2O. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था,
कि XE जो है ये +6 स्टेट में आना चाहता है, तो दो तरह से आ सकता है, या फिर वो XeF6 बने या फिर XeO3 बने। तो अगर हम यहाँ पे 3H2O दे देंगे तो जेनन को 3 ऑक्सीजन दिख जाएगा और ये बहुत अच्छे से XeO3 बना देगा और बाकी सारे HF निकल जाएंगे। 6H 6F 6HF। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है, लॉजिक है, ठीक है। अब अगर बहुत सारा पानी डाल दें, बहुत सारा पानी किसके अंदर, XeF4 के अंदर पानी डाल देंगे, बहुत सारा XeF4, ये जो है ना XeF4, इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देंगे। कितना डालेंगे, 12 मोल्स ऑफ वाटर डाल देंगे, बहुत सारा पानी, 12 मोल्स। XeF4, इसमें खूब सारा पानी डाल दिया, यानी कि बहुत सारा हाइड्रोजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, Xe बन सकता है, और क्या बन सकता है, XeO3 बन सकता है, और क्या बन सकता है, HF बन सकता है, और क्या बन सकता है, O2 बन सकता है। अब बैलेंस कर देंगे इसको, HF निकाले पहले, जितना हाइड्रोजन है उतना HF तो होगा। सो दिस इज 24 हाइड्रोजन, सो दिस विल बी 24 HF। एक लीड मिल गया सोचने का हमें, दिस विल बिकम 24 HF। HF सोचने के लिए लीड चाहिए होता है, लीड, ठीक है। तो यहाँ पे 24 HF निकाल दिया है हमने। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो जगह अवेलेबल है, एक यहाँ पे O2 के फॉर्म में अवेलेबल है और एक यहाँ पे 3 के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूं तो 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे फिर। सो व्हाट वी कैन डू इज, two xenon molecules are coming out, so I will give it 2, later on we will see, चेंज करेंगे तो हिट एंड ट्रायल करके। इसको 2 कर दिया, अच्छा इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 8 फ्लोरीन ही हो रहे हैं, बट वी नीड हाउ मेनी, वी नीड 24 फ्लोरीन। तो 24 फ्लोरीन करने के लिए क्या करेंगे, 6 XeF4 करेंगे तो 24 फ्लोरीन भी बन गए। अब यहाँ पे हमारे पास 6 जेनन है और यहाँ पे 2 जेनन है। ऑक्सीजन कितना करना है हमें, ऑक्सीजन करना है हमें 12। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इवनली डिवाइड करते हैं, ये 6 करते हैं और ये भी 6 करते हैं, तो लेट दिस बी 3 एंड लेट दिस बी 2। अब कितना जेनन बचा है यहाँ पे, 2 जेनन हमने ले दिया, 6 जेनन यहाँ पे है, तो 4 जेनन यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम है जो बैलेंस नहीं हुआ अभी ठीक से। 12 ऑक्सीजन, 6 + 6 12 ऑक्सीजन, 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन, ठीक है। और 24 फ्लोरीन, 24 फ्लोरीन, 6 जेनन, 6 जेनन, बैलेंस हो गया। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है, 1 2 3 4 रूल याद रखना है। 1 2 3 4। XeF6 कैसे बनेगा, 1:20 रेशियो में जेनन और फ्लोरीन लेंगे और 573 केल्विन पे 60 to 70 बार प्रेशर पे उसे रिएक्ट कराएंगे, तो XeF6 बन गया। XeF6 को हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, मतलब वाटर के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को तोड़ना। तो पहले हम 1 मोल H2 देंगे, 1 मोल H2 देंगे तो कितना H2 कितना दिया फिर H2 में 2, तो 2 HF निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी कितना बचेगा, XeOF4 बन जाएगा,
ठीक है। फिर 2 मोल H2O देंगे, 2 मोल H2O देंगे तो कितना हो जाएगा, 4HF निकलेगा और बनेगा XeO2F2, ठीक है। फिर 3 मोल H2O देंगे, 3 मोल H2O देंगे तो XeO3 बन जाएगा, ठीक है, और 6HF निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं XeF4 के हाइड्रोलिसिस में। XeF4 के हाइड्रोलिसिस में 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन कौन से 4 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, Xe, XeO3, HF एंड O2। Xe, XeO3, HF एंड O2, ठीक है। वाटर कितना लगेगा उसमें, 12 मोल्स वाटर लगेंगे। 12 मोल्स वाटर को हमें इवनली डिवाइड करना है। तो पहला लीड क्या है, जितना हाइड्रोजन है उतना HF निकाल देंगे। तो 12 H2O में कितने हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है। 24 हाइड्रोजन से हमने क्या किया, 24 हाइड्रोजन को इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बाद में देख लेना, ठीक है। एकदम ऐसा मेंटल पिक्चर से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। 24 HF हो गया, ठीक है, 24 HF निकाल दिया हमने। उसके बाद फिर क्या बचा, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर हम जिनन को बैलेंस करेंगे। इस तरह से हम XeF4 के मॉलिक्यूल को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रुप 18 एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स विच इज प्राइमरीली ऑफ जिनन। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये रेशियो, ये टेम्परेचर की कंडीशन और प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनन फ्लोराइड। देखो मैंने रेड से लिखा है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसको याद करना भी बहुत आसान है। चाहो तो इसे याद ना करो, ठीक है, सोचो कि नहीं आएगा एग्जाम में, और एग्जाम में आ जाएगा तो लिख नहीं पाओगे, या फिर एक बार देख लो तो ये कभी नहीं भूलोगे, बहुत इजी है। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग, इनके स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा व्हिस्पर थ्योरी के आधार पे। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनन। कंपाउंड्स ऑफ जिनन कौन कौन से हमारे पास, XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeOF4 है, XeO2F2 है, और क्या है, XeO3 है, ठीक है। तो इतने के हमें स्ट्रक्चर निकालने हैं। किससे निकालने हैं, बाय VSEPR थ्योरी। ये कोई नया थ्योरी तो है नहीं, इसको अप्लाई कर लेते हैं, एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो व्हिस्पर थ्योरी में सबसे पहले चीज क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का हम वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे है सेंट्रल एटम जिनन। तो जिनन कौन से पीरियड में है, हीलियम है फर्स्ट पीरियड में, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड देन जिनन, 1 2 3 4 एंड 5। तो जिनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 5s2 5p6। 5d वगैरह तो होगा ही होगा, क्योंकि 5th पीरियड इज ए longer period in which D will be there. Reason for me to write this is कि मुझे वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो एक बार इसका डिजाइन लिख लेते हैं बॉक्स डायग्राम में। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड D इज वैकेंट। अब जितना मुझे चाहिए होगा उतना मैं वैकेंट करते जाऊंगा और फ्लोरीन ऐड करता जाऊंगा। 1 2 3 4 5। अब बोला कोई, किसी ने मुझे बोला चलो XeF2 बना के दिखाओ, तो कोई बात नहीं, चलो XeF2 बना देते हैं। एक फ्लोरीन यहां डाल दो, ठीक है, एक फ्लोरीन यहां डाल देंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। क्यों, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड हो गया, यहां पे अनपेयर्ड हो गया, यहां अनपेयर्ड है, यहां पे अनपेयर्ड है, तो यहां पे एक एक फ्लोरीन आ जाएगा, 3 लोन पेयर रहेगा, ठीक है, sp3d। अब sp3d का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये 3 लोन पेयर एक प्लेन पे, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, बीच में जिनन, सेंट्रल एटम, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर है ये। अब मुझे कहा कि चलो XeF4 बना के दिखाओ,
कोई बात नहीं, देख लो XeO4 बना देते हैं अभी। अच्छा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट शेप इज लीनियर। हाँ, शेप क्या है, लीनियर है। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घोस्ट की तरह इलेक्ट्रॉन दिखेगा थोड़ी, हाँ लेकिन है, मौजूद तो है, दिखेगा नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर में ये इंक्लूड करते हैं, शेप में नहीं। शेप में हम सिर्फ एटम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। XeF4, अभी हमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, तो यहाँ पे एक या तो 2 अनपेयर्ड हो गए, फिर इसको भी यहाँ बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा दिया, तब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हो गया 5 और ये 6, तो ऑक्टाहेड्रॉन होता है। ऑक्टाहेड्रॉन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 2 लोन पेयर्स हैं, यानी कि ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, और ये स्क्वायर साइड में फ्लोरीन के लिए, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल। दिख तो रहा है ना ये पार्ट। हाँ, तो जैसे जैसे फ्लोरीन बढ़ता जाएगा वैसा वैसा यहाँ पे लोन पेयर कम होता जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर ऊपर और नीचे है, तो रिपल्सन इवन होगा, तो कैसा होगा ये, स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल बट शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब कोई कहे कि नहीं XeF6 बना के दिखाओ, पहले ये फिर वो और फिर ये करके दिखाओ। किसने गाया था, याद है ना, किसने गाया था, पहले ये फिर ये और फिर ये करके दिखाओ। तो XeF6 के लिए करना होगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। नाउ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर एंड हाइब्रिडेशन विल बी sp3d3। sp3d3 में क्या होगा, 6 पॉइंट्स प्लस 1 पॉइंट, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट कैसे अरेंज करेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब डिसाइड करेंगे कि कौन सा कहाँ पे होने वाला है। पेंटागन कैसे बनाए, एक यहाँ पे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो एक किसी कॉर्नर पे ये एक लोन पेयर डाल देंगे और बाकी सब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वन टू थ्री sp3d3। तो अब थोड़ा सा क्लियर करके करते हैं, ठीक है। और द सेम थिंग आई एम गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नाउ। यूजिंग वेस्पर थ्योरी, justify the following structures. Now you have to justify these following structures. One is Xe, then Xe F4,
कुछ नहीं करना है, सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे देखना है और जितने लोन पेयर है उसको देखना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। ठीक है, VACP देखना है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट इज XeF6, TBP होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर होने के कारण क्या हुआ, रिपल्सन इस तरह से हुआ कि ये ट्राइगोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल ना होकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस इज लीनियर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। XeOF4, हाइब्रिडाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। पाई बॉन्ड जो है वो प्योर पी ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिड नहीं, ये ध्यान रखना। व्हाट आई सेड जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी में। पाई बॉन्ड जो है उसमें पी और पी ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करता है। ठीक है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय pure p orbital. Pi bond is not formed by hybrid orbital. Take care. Next, XeO3, Xe lone pair, O and O, trigonal pyramidal. तो पाई बॉन्ड जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करते ही नहीं है, बस ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। सो यू हैव टू जस्टिफाई दिस स्ट्रक्चर, हाँ, दिस इज योर होमवर्क। ऑल्दो आई हैव डन इट प्राइमरीली, बट देन यू हैव टू डू द स्पेड वर्क। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम अप टू D तक, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देना है। फिर फ्लोरीन के साथ जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अकॉर्डिंगली हम उस तरह से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करने के बाद देखेंगे कि कितने S, कितने P और कितने D टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल है तो लोन पेयर को हम एक प्लेन में रखेंगे और बाकी को हम एक्सियल प्लेन में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को याद करना है। फ्रॉम टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग question answers of p block elements. Okay, so I will take another 4-5 days to discuss question answers of p block elements. Parallel to that, I had given you one collaborative presentation. Now you can again revisit that, and the questions which you are not able to do at that time, now you should be able to do it. Okay, now you should be eligible to find out the answer of that and make it. For those students, those who are not doing it, I am requesting the other students to grab the opportunity of completing that PowerPoint. Once you complete that, I will play that, display that, means I will do some kind of editing in that, correction and anything if it is required. Then I will display that in the smart board and I will explain each and every answer, so that those who are not able to do, they will be able to learn due to your efforts. Okay, this will be a collaborative learning, collaborative and cooperative learning. Okay, so this is a kind of a peer help kind of an activity which I have given. So we have waited for many students to give their input. I have got inputs of around 17 students. So many students are not yet responding to that. Okay, and this ratio is quite normal ratio. Alright, I accept that. So still I am giving you an opportunity. Don't let others do your work. Okay, if you can do it, it will boost your confidence. If not, then let others do. Then I will explain that, and after that you will get the product of learning. You will not undergo the process of learning. दो चीज़ है, एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, और एक प्रोडक्ट है जो बना बनाया है क्वेश्चन आंसर याद कर ले। क्वेश्चन आंसर याद करने वाले जो होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर याद करके भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर याद करना ही इज़ नॉट इनफ। सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके,
So that is it all about P block elements group 15, 16, 17 and 18. Now we'll be discussing question answers. That is also important from exam point of view. Thank you.